warm welcome to all the participants who are there today for our Health Mela. This is the third lecture of the series. And in this lecture, we are going to talk a little about the desk workers, the school children, their postures, their diet, and what else can we take care of it. Now, we all know that the pandemic has almost ended. Thankfully, in India, the cases of COVID are going down and exponentially down rather by the day. So we are very happy about it. The much awaited vaccine has arrived. That's another good news for everybody. So I think it would be the largest vaccination drive in the world, which is happening right now. But still, as we look at it, the vaccine will still take a lot of time to reach to the common public, because right now it is in the phase where all the health workers are availing the benefits of it. And in the times to come, a lot of companies who had adopted work from home is still continuing on those basis. People are still working from home. There's still a lot of time when the school will reopen. And even if it reopens, it will reopen first for the 9th and the 10th standard children or the college going people rather than for the younger children. So as we still continue to work from home, there would be teachers who would be taking classes online. There would be IT people. There would be other people who are working online. They are on their screen for hours on end. And in this scenario now, it's getting a little more monotonous for us. And what is happening is that that social interaction, that little tiny pep talks, those tidbits which used to happen in the workplace is totally amiss. And what is happening is that just because we are getting into that monotony, to cut it down, we are ending up into binge eating. That is what we are noticing at this point of time. And due to this binge eating, most of us have seen that our physical activities have gone down. And because of all this eating habits, we have put on a little weight in the last couple of months. Rather, it would be a year now when the March will arrive. And no soon March is going to arrive, because January, this month, is almost to an end. So now let's see that first we will take up the diet topic and find out that where we are going amiss and what can we still do, because we don't know when exactly everything will be normally streamlined. People are going out for entertainment purpose, but still for work purpose, a lot of times we are homebound. So what healthy tips we can give you, what diet things you can swap what for what, and find out what healthy options are there at home in your kitchen, which will keep you more refreshed throughout the day, give you more energy, and give you rather a balance of taste as well as nutrition. So with this, I welcome the first speaker for today. She is Vishakha. She is a dietitian at our dietetics department in Saifi Hospital. She has done her MSc in clinical nutrition and dietetics. And from here, she will take us ahead and take us through to the journey of what we can eat throughout the week, how you can plan our meals, what should be added, which we are not doing. So I hope there will be a lot of takeaways for you all as far as permutation combinations of food is concerned. So welcome, Vishakha. You can take it from here. Good morning, everyone. I'm dietitian Vishakha, your speaker for the day. Since past 1 year, we are facing problems due to this COVID-19 pandemic. Majority of the people worldwide is working from home, due to which obesity and overweight is very common among adults. So today we'll talk about how to overcome this situation by a few lifestyle changes and indulging in healthy eating habits. Now, what are the common problems faced by an individual while he or she is working from home? Like flow of communication. There is lack of communication between the boss and the colleague. Distraction at work. When you are working, your kids are playing around you, or there are television in the background. Other chaos in the home.
lack of motivation. Since we are not going to the office, then the competition between the boss and the colleagues is lacking. टेक्नोलॉजिकल हिकअप्स, इंटरनेट प्रॉब्लम्स, उसके वजह से क्या होता है, स्ट्रेस होता है. तो स्ट्रेस की वजह से वी टेंड टू ईट अ लॉट while we are stressed. So it will lead to increase in your stomach fat. Work-life balance. Because you are working from home, there is no balance between your work and your family life. Our work has come to the home, so because of which we are all the time engrossed in our work only. Also, because of work stress, there is depression and anger, which also affects our family life. Overweight and obesity. We always see, that overweight and obesity, it always increases when we see. It is a very common it is very common problem worldwide. हमेशा ये ओवरवेट ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, हार्ट डिजीज है, गॉल ब्लैडर डिजीज है, फैटी लिवर है, कैंसर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है. वेट काफी होने की वजह से आपके जो भी बोन्स पे वेट आते हैं, नीज पे मेनली वेट आ जाता है, तो उसकी वजह से हमारा बोन्स एक दूसरे पे रब होने की वजह से आपको बोन इश्यूज हो सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे है. ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है आपके ओवरवेट होने की वजह से. अभी हम घर पे से काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अपना हेल्थ कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी लैक हो रहा है. ये कैसे, हम पहले ऑफिस जाते थे, तो घर से ऑफिस जाने का जो काम जो उतना भी वर्क होता, उतना भी ट्रैवलिंग का पार्ट एक्टिविटी होता था, वो भी लैक हो रहा है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल इंक्रीजेस बेली फैट. सिंस यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू आर हैविंग अ लैविश स्प्रेड ऑफ लंच एंड डिनर, तो हम खाने के बाद डायरेक्टली काम करने बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से डायरेक्टली हमारा पेट पे जो फैट होता है वो बढ़ने लगता है. ये ज्यादा खाने से और एक ही पोजीशन में ज्यादा टाइम बैठने की वजह से कॉन्स्टिपेशन है या ब्लोटिंग है या इंडिजेशन है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. कम कम पानी पीने से, बहुत ज्यादा कॉफी या चाय पीने से, या हम रात भर जग के काम कर, डेडलाइंस होते हैं वो फिनिश करने के लिए, जबकि रात को हमारा डाइजेशन प्रोसेस में होता है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं. बिंज ईटिंग और स्ट्रेस ईटिंग. व्हाट इज दिस नाउ? व्हेन यू आर स्ट्रेस, यू टेंड टू ईट अ लॉट व्हाइल स्ट्रेस. अब डेडलाइंस है कि ये टाइम पे आपको काम खत्म करना है, तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस में ज्यादा खाने लगते हैं, तो वो भी एक रीजन है ओवरवेट होने का. इनकरेक्ट पोस्चर, जो आपका बैक पेन और नेक प्रॉब्लम्स होगा उसकी वजह से. सोशल लाइफ नहीं है, जिसकी वजह से अपना मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है. सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल पाते हैं, तो जो रिलीफ मिलता है अपने को काम करने से, वो भी अफेक्ट हो रहा है उसके वजह से. अभी जैसे मैंने बताया, कॉमन हेल्थ रिस्क ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी. और विमेन में ये कैसे अफेक्ट करता है, तो ये पीसीओडी के फॉर्म में विमेन्स में अफेक्ट करता है. जंक फूड खाने से, स्ट्रेस होने से, लाइफ में कोई पैटर्न, आपके रोज डेली रूटीन में कोई पैटर्न नहीं है, इसकी वजह से पीसीओडी के सिम्टम्स, पीसीओडी एक हो सकता है. उसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, तो इनफर्टिलिटी है, एक्सेसिव ग्रोथ, हेयर ग्रोथ है, एक्ने प्रॉब्लम्स है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से डायबिटीज, जैसे डायबिटीज हो सकता है. ये कॉमन प्रॉब्लम्स है आपको पीसीओडी सिम्टम्स की, कॉमन पीसीओडी सिम्टम्स है. अभी विटामिन डी डेफिशिएंसी. सिंस यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, आपका बाहर जाना बहुत ही कम होता है, तो आपको जो विटामिन डी जो सन से मिलता है वो नहीं, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पा रहा है, तो उसके सिम्टम्स, उसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है. तो उसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, ओवरवेट है, इची एंड ड्राई स्किन है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, वीक इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस, जॉइंट पेन, मूड स्विंग्स. नाउ व्हेन योर विटामिन डी एंड ओवरवेट वेट लॉस प्रोसेस आर बोथ इंटरकनेक्टेड. जब आपका विटामिन डी कम होगा तो आपका वेट लॉस प्रोसेस भी कम होने लगता है. तो विटामिन डी लेवल प्रॉपर होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. weak immune system. Vitamin D is also involved in building your immune system. So when your vitamin D levels are low, you tend to have a weaker immune system, which is not advisable in this COVID-19 pandemic. विटामिन डी डाइजेशन में भी हेल्प करता है, तो जब आपका विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल हो, तो आपका फूड प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस है, वो काफी अच्छा होगा. आपको हमेशा ऐसे लगता है कि कितना भी आप खा रहे हो पर भी थकान और हमेशा टायर्डनेस, फटीग होता है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है, तो इसकी वजह से आपका काम पे बहुत ध्यान नहीं लग रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी. नाउ जॉइंट पेन्स. विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो जब आपका विटामिन डी लेवल्स लो होगा तो आपका कैल्शियम लेवल्स भी लो होगा,
तो इसकी वजह से आपको बोन पेन्स है, ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है. Also, we don't get the daily requirement of vitamin D from the food we eat. So it is important to take supplements of vitamin D whenever the levels of vitamin D drop down or it is low. So you can take vitamin D supplements. आपके physician या भी कोई family doctor के advice से आपके vitamin D supplements आप ले सकते हो. अभी daily requirements of adults, it always vary from individual to individual. जैसे कि कोई उसके एक्टिविटी के ऊपर, बॉडी टाइप के ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स वेरी करता है. नाउ टू फॉलो दिस डेली रिक्वायरमेंट, टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट, यू नीड टू फॉलो दिस फूड न्यूट्रिशन पिरामिड. नाउ न्यूट्रिशन पिरामिड का बेस जो होता है वो वाटर होता है. 80% ऑफ योर ब्लड इज वाटर. So it is very important to hydrate yourself properly because water also helps in absorption of certain minerals and nutrients from the food you eat. 25% of your diet should consist of fresh fruits and vegetables because they are rich source of vitamins and minerals. And it also is a rich source of fiber, which gives you a feeling of satiety. 20% should consist of carbohydrates, जो आपको daily routine के लिए energy देता है. 15% proteins होना चाहिए. नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग है, फिश है, चिकन है, ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स माने जाते हैं. और वेजिटेरियंस के लिए पल्सेस, सोयाबीन, पनीर, अदर फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स जो मसल बिल्डिंग और डेली वेयर एंड टेयर ऑफ द टिश्यू के लिए यूज होता है. 15% मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होना चाहिए फॉर योर हेल्दी बोन्स. एंड 10% फैट्स होना चाहिए विच गिव्स यू द ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. रिच सोर्सेज क्या है इसके? तो आलमंड्स है, वॉलनट्स है या पंपकिन सीड्स है, जो भी ऑयल सीड्स है. दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6. नाउ वी ऑलवेज गेट watermelon and pumpkin at home, but we tend to throw away the seeds, forgetting that they are the rich source of omega 3 and omega 6. So whenever next time you get watermelon or pumpkin at your home, wash the seeds, dry them and store them, and you can use them later as a source of omega 3 and omega 6. Now to complete the food nutrition pyramid, you see to follow this my food plate concept. तो जो भी फूड पिरामिड में आपके कंपोनेंट्स है ये सब आपके प्लेट पे होना चाहिए टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट. जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, प्रोटीन्स है, ग्रेन्स में आपका सीरियल्स आ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपके प्लेट में होना चाहिए. तो आपको सब न्यूट्रिशन एंड वाइटामिन मिल जाएगा. असेंशियल जो न्यूट्रिशन है आपके डेली रूटीन के लिए वो आपको मीट हो जाएगा. तो पोर्शन कंट्रोल इज द की. एवरीवन always thinks that dieting means you restrain or refrain yourself from eating or indulging in your favorite food item, but this is not true. What you can do, you can keep a control over the portion size over what you're eating, and you can enjoy your favorite food item. Just keep in mind the portion control is the key. By keeping in mind portion control, you can always indulge into your favorite food item. Suggestions to overcome the problems. Now, as I spoke before, like how sedentary lifestyle is affecting our health. So, few suggestions क्या है उसके? So, hydrate well because hydration is very important as it helps in digestion of the food. Note while snacking. जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो उसके थोड़ा सा एक नोट बना लेंगे तो हम कॉन्शियस हो जाएंगे कि मैंने पूरे दिन में इतना ऑलरेडी खाया है, इतना इंटेक हो चुका है, तो अभी मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. सेट अ शेड्यूल. मेंटेन रेगुलर वर्क आवर्स. आपने एक पूरे दिन का स्केड्यूल बना लिया तो आपकी रूटीन में भी डिसिप्लिन आ जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये आपको पूरे दिन में रिफ्रेश रखेगी और आपको ड्राउजी फीलिंग नहीं आएगी जो आपको हैवी खाने की वजह से आता है. ट्रैक योर वेट. If you don't have a weighing machine, you can use a measure tape to check your inches, which is very important to be alert. थोड़ा आप हमेशा एटलीस्ट 1 वीक या 15 डेज के बाद वेट चेक करेंगे तो आप अलर्ट रहेंगे कि मेरा वेट बढ़ चुका है, तो अभी मुझे थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि कम खाना चाहिए या एक डाइट फॉलो करना चाहिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर वेट. Plan your day. Now, everyone should plan a day according like 3 major meals and 3 minor meals. अभी major meals में क्या होता है? Breakfast, lunch and dinner. And minor meals में mid morning, evening snacks and pre-dinner. Pre-dinner you can always offer soups and salads. So वो क्या होता है? आपका dinner जो है lightest meal होना चाहिए of the day. Because as the day अपना उसका मेटाबॉलिज्म रेट कम होने लगता है तो आपका फूड डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो होता है. तो डिनर लाइट होगा तो आपका वेट लॉस प्रोसेस में भी हेल्प करेगा. आपका
बेली फैट जो इंक्रीज होता है वो आप मेनली आपके डिनर पे डिपेंड करता है. इफ योर डिनर इज लाइटर, you will have less belly fat, because after having heavy dinners we usually sleep. So please see to it that you have less dinners, like light dinners. मिड मॉर्निंग में हमेशा फ्रूट्स है या कोई एलमंड्स है, वॉलनट्स है, कोई भी नट्स है, ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, या कोई स्मूदी है ऐसे ले सकते हो. इवनिंग स्नैक्स लाइक टी टाइम पे आप टी के साथ कुरमुरा है या जवार पफ है, खाकरा है या टू मैरी बिस्किट है, ऐसे ऑप्ट कर सकते हो. So these are the health, main macronutrients like your fats, protein, and carbohydrates, which forms the lunch, dinner, the main base of your diet. Okay. Then healthy beverages, infused drinks, which keeps you refreshed throughout the day and also helps in the digestion process. Buttermilk is considered a good probiotic. Green juices and smoothies gives you a feeling of satiety and is also helpful in weight loss. ग्रीन टी है आपके मेटाबॉलिज्म रेट को थोड़ा बूस्ट करेगा, तो इन बिटवीन आप ग्रीन टी ले सकते हो. कोकोनट वाटर हाइड्रेशन के लिए काफी अच्छा है. हम पानी कम पीते हैं तो एक 1 glass ऑफ कोकोनट वाटर विल ऑलवेज हेल्प यू फॉर हाइड्रेशन. Milk, as I told before, is for calcium, is good source of calcium and protein for your healthy bones. Now, healthy alternatives. जैसे आप हमेशा वेफर्स है या कोई भी फ्राइड आइटम्स खाते हो टी टाइम के समय, तो कुरमुरा के साथ आप भेल बना सकते हो, बिकॉज कुरमुरा इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. जवार पफ है या पॉपकॉर्न है, मखाना भी यूज कर सकते हो, वो कैल्शियम रिच सोर्स है. रोस्टेड चना है जो प्रोटीन रिच है, या खाकरा है. These are the few healthy alternatives for your tea time snacks. Now, make a note. It is very important that you eat your food with your family, because eating your food with your family will keep you alert about what you are eating. When you are in front of a screen or any screen, you tend to eat a lot, or you eat fast, which will lead to more morsels and you will gulp your food. So gulping of food will lead to more intake of food. So eat your food slowly, chew your food, and do not gulp your food. Enjoy your food properly, which is very important. फूड स्वॉप्स. अभी कॉमन फूड स्वॉप्स क्या है, जैसे हम स्पेगेटी नूडल्स होते हैं जो मैदे का होता है, उसकी वजह से उसके बदले में हम जुकीनी स्पाइरल्स है ये यूज कर सकते हैं, या व्हाइट राइस के बदले में कॉलीफ्लावर राइस या ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं. मैश पोटैटो के जगह पे मैश कॉलीफ्लावर है. एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं जो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, उसके जगह पे लेमन वाटर है, जीरा वाटर है, ये यूज कर सकते हैं. किसी किसी को स्वीट टूथ होता है तो आप डार्क चॉकलेट है या तो डेट्स है या ब्लैक रेजिन्स है या जैगरी है, तो ये स्वॉप कर सकते हैं. व्हाइट शुगर से बेटर है स्टीविया या तो ब्राउन शुगर है. अब फ्लेवर योगर्ट पसंद है किसी को, तो उसके वजह से हम उसके बदले में हम फ्रेश कर्ड उसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स कट करके डाल सकते हैं, या पैनकेक मिक्स रेडी हम बाहर से लेके आते हैं. तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर wheat flour with bananas and eggs into it, which are the common food source you can use into your day-to-day routine. Okay. So last but not the least, do not forget the mantra of healthy living. Think positive, eat better, exercise often, feel good. These are the 4 key words of healthy living. Thank you. Okay, thank you, Vishakha, for giving us so many options which we can definitely try out and maintain ourselves more fresh and energetic. तो अब हमारे खाने पीने की तो बात हो गई. Again, we come back to square one of weight gain. Okay, so we are not basically talking about the weight gain part of it, but definitely we can talk about के चलते फिरते स्क्रीन के सामने बैठे बैठे हम क्या ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमने जो खाया पिया है हम एटलीस्ट उसको बैलेंस तो करके रख सकें. इफ नॉट द आउटपुट इज मोर, एटलीस्ट इनपुट मेंटेन करें. इनपुट अगर इतना है तो उसको आउटपुट के लेवल पे मेंटेन करें. At the same time, there are so many pains and aches which we develop because of our bad posture while we are sitting in front of the screen, while we are sitting in front of the TV, while we are working, while we are doing any desk work at home, while we are teaching. There are so many times in the day where we are just taking our back, our neck, our shoulders, our body for granted.
So let us see that what these smaller activities, how often do you need to take a break to stretch out? What sort of stretches would be good for you? And what little things even you can do while you are working around the chair. You can get up, there are different permutation combinations again with regards to your stretches, your exercises and posture. So to talk about this, I will welcome my senior therapist who's working with us at the Advanced Physiotherapy Department, Dr. Sonal Gole. She would be talking to us about all these little tips and tricks which will keep us agile and take us the extra mile. Thank you very much, Dr. Swati. Good morning, everybody, and I welcome you all on the second half of this webinar. So today we are going to talk about agility. So what is agility? Agility is the ability to move quickly and easily, right? Is my screen visible to all? Okay. Yeah. So today's topic is remain agile to go an extra mile. So what is agility? Agility is an ability to move quickly and easily. So अगर आपको agile रहना है, तो you should have a good systemic fitness. That is your organs, your brain, heart, lung, everything should function optimally. A mental fitness, that is your psychological well-being, and physical fitness, that is your range of motion, that is mobility of your joint. आपका जो मसल का स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऑप्टिमम होना चाहिए. And very important aspect, that is the posture, which we all conveniently forget. So what is posture? Posture is the position in which we hold our body. तो कुछ लोग ये वेबिनार बैठ के देख रहे हैं, कोई लेट कर देख रहा है, कोई खड़ा होकर देख रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो posture है. So why are we discussing posture? Why is it so important? तो जब आप सही posture maintain करते हैं तो आपका जो body है कम energy utilize करता है, and thus you feel less fatigue and आपका efficiency improve हो जाता है. Proper posture also puts less stress on your ligaments and joints, and thus आपका chances of injury कम हो जाता है. आपको neck pain, back pain, ये सारी चीजें भी आप avoid कर सकते हैं अगर आप सही posture में बैठे हैं, सही posture में काम करें. जो एज के हिसाब से हमारे जो डिजेनरेटिव चेंजेस होने हैं, अगर आप सही पोस्चर मेंटेन करते हैं तो आप उन चेंजेस को भी डिले कर सकते हैं. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोस्चर? देयर आर टू टाइप्स. स्टैटिक पोस्चर, जहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, एंड डायनामिक पोस्चर, जहां पे मूवमेंट हो रहा है, लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड बेंडिंग. So what are the contributing factors that leads to poor posture? The first and the very important is the stress. तो जब भी आप स्ट्रेस में बैठकर काम करते हैं तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर बॉडी पोजिशनिंग, सो यू जनरली गो इन अ स्लाउच पोजिशन एंड स्टार्ट वर्किंग, या तो जल्दी जल्दी में आप कुछ उठा लेते हैं, एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू पेन एंड पुअर पोस्चर्स. देन ओबेसिटी, जैसे आपका वेट बढ़ेगा आपके जॉइंट्स पे लोड बढ़ता जाएगा. आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग बहुत ओबीज है, उनका पेट जिनका बहुत आगे है, उनका जो लोअर बैक का जो कर्व है वो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है. सो दैट इज वन टाइप ऑफ अ पुअर पोस्चर. देन वीक और टाइट पोस्चरल मसल्स, हमारे बॉडी को एंटी ग्रेविटी यानी सीधा रखने के लिए हमारे बॉडी में पोस्चरल मसल्स होते हैं, लेकिन अगर वो मसल्स ही आपके वीक है और टाइट है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो आपको सही पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प नहीं करेंगे. देन फॉल्टी फुटवेयर, फॉल्टी फुटवेयर आपके एंकल और नी को ही डैमेज नहीं करते हैं, बट वो आपके ओवरऑल अलाइनमेंट को डैमेज करते हैं, एंड दैट कैन लीड टू पुअर पोस्चर्स. पुअर वर्क एनवायरनमेंट, इफ योर वर्क डिमांड्स लिफ्टिंग वेट, आपको वजन उठाना रहता है या पुशिंग पुलिंग करना रहता है, और अगर आप उसे सही तरीके से नहीं करते हैं, so then it leads to poor posture, which in turn can lead to injury. Then faulty and prolonged work posture, like अगर आप कोई भी posture बहुत लंबे टाइम के लिए मेंटेन करते हैं तो भी आपको पेन एंड डिस्कम्फर्ट हो सकता है. So these are few common things or common postures that we generally do, and we don't even notice कि हम ये सब कर रहे हैं जो हमें long run में हमारे posture में affect कर सकते हैं. Like in the first image, the lady is holding a purse on one side. तो जब भी हम कोई बैग एक साइड पे लेते हैं, unknowingly हम उस शोल्डर को एलिवेट कर देते हैं टू सपोर्ट द बैग. उसकी वजह से जो हमारा नेक का ट्रापेजियस मसल है वो टाइट हो जाता है, एंड इन द लॉन्ग रन दैट कैन लीड टू योर हेडेक्स, सर्वाइकल पेन्स, शोल्डर पेन्स एंड ऑल.
In the second image, if you see the first half of the second image, जब वो बैठे हैं तो उनका pelvis aligned है, जिसकी वजह से उनका जो spine है वो भी aligned है. लेकिन जैसे ही वो एक वॉलेट डालते हैं अपने बैक पॉकेट में, उनका वो पेल्विस ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से उनका जो स्पाइन का अलाइनमेंट है वो भी अफेक्ट हो सकता है. तो अगर ये हैबिट वो प्रोलॉन्ग रखे तो इन अ लॉन्ग रन उनको स्कोलियोसिस भी हो सकता है. Then other activities like faulty sitting and faulty reading, constantly being on the mobile phones, लेट कर टीवी देखना, तो ये सारी रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम करते हैं, जो हमारे ध्यान में भी नहीं आता है, बट वो हमारे पोस्चर को खराब करते हैं. तो अगर आप ये सेंट्रल इमेज देखें तो दैट इज अ गुड पोस्चर, जहाँ पे आपका ईयर्स, आपका शोल्डर, हिप, एवरीथिंग इज इन द स्ट्रेट लाइन, एंड जो आपका स्पाइन है उसके कर्व्स भी सही तरीके से है. लेकिन अगर आप लेफ्ट एंड राइट के पिक्चर्स देखें तो उनका एकदम फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, उनको हम्प आ गया है, फिर उनके शोल्डर्स जो है वो बहुत राउंडेड है, फिर फर्स्ट इमेज में उनका पूरा जो लोअर लॉर्डोसिस है या जो लोअर लंबर रीजन है वो पूरा फ्लैट हो गया है, एंड द लास्ट इमेज में वो बहुत ज्यादा अंदर या एग्जैजरेट हो गया है. इन द फर्स्ट इमेज वो नी बेंड करके खड़े हैं, इन द लास्ट इमेज वो पूरा हाइपर एक्सटेंड करके बैठे हैं, खड़े हैं. So these are different poor postures that we commonly get to see. This is another very important concept. Like आपका जो weight होता है, आपके head का जो weight होता है वो approximately 8% of your body weight है. ओके लेकिन जब भी आप सही posture में रहते हैं तो वो आपके cervical spine पे या आपके neck पे कोई लोड नहीं डालता. लेकिन जैसे ही आपका नेक आगे चला जाता है, जिससे ही आप फॉरवर्ड हेड चले जाते हैं, आपके नेक का लोड बढ़ता जाता है. सो इवन 1 इंच अगर आप फॉरवर्ड हेड पोस्चर में जाते हैं तो आपके नेक पे 10 गुना वजन ज्यादा बढ़ता है. सो इफ यू गो 2 इंच तो आपके नेक पे 20 गुना वजन ज्यादा बढ़ेगा. तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके नेक के बोन्स में डीजनरेशन बहुत जल्दी होना शुरू होता है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है. So then you can end up with tension headaches and neck pain, shoulder pains and upper back pain. अगर आप सेकेंड इमेज में देखें, जब उनका पोस्चर सही है तो उनका ये जो मसल है एकदम सही लेंथ पे है, लेकिन जैसे ही उनका पोस्चर फॉरवर्ड चला जाता है तो वो मसल शॉर्टन हो जाता है. तो ये डे टू डे लाइफ में हमें बहुत देखने को मिलता है, बिकॉज वी ऑल हैव वर्किंग ऑन लैपटॉप्स, वर्किंग ऑन द मोबाइल फोन. सो दिस पोस्चर इज वेरी कॉमन एंड दैट इज द रीजन we get to see more of neck pains and cervical issues and headaches. So cumulative trauma disorders. So हमने नोटिस किया होगा कि until and unless there is a history कि कोई गिर गया है या ट्रॉमा है, जनरली जो बैक पेन्स है, नेक पेन्स है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, फिर वो एक दिन बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है. तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम पोस्चर ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी में माइक्रो ट्रॉमा होती रहती है. बॉडी अपने हिसाब से उसको हील कर देती है, लेकिन जब उसके हीलिंग कैपेसिटी से वो बाहर चला जाता है, देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू एग्रीवेटेड पेन एंड डिस्कम्फर्ट, फॉर विच देन यू गो टू अ मेडिकल प्रोफेशनल. So what is cumulative trauma? Cumulative trauma is excessive wear and tear due to continuous use over an extended period of time. So most of the times जो आपके neck pain, mid back pain and low back pain होते हैं, they are a part of cumulative trauma disorders. ये over a period of time develop हुआ है. It's just not कि वो कल से ही आया है. वो थोड़ा थोड़ा build up होता है and then it gets aggravated. The second very commonly seen cumulative trauma disorders are the shoulder pain. तो अगर आप ये first image देखें, this red circle is the space is called as a subacromial space. तो ये आपका शोल्डर जॉइंट है और ये आपका ये ह्यूमेरस बोन है. तो ये स्पेस होती है और इस स्पेस के अंदर से आपके मसल्स जाते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सुप्रास्पाइनेटस, ये सारे मसल्स इस स्पेस के अंदर से जाते हैं. तो जब आप ये ग्रीन पोस्चर में रहते हैं, जब ये आप सीधे रहते हैं तो ये स्पेस बराबर रहती है, एंड देन व्हेनेवर यू आर डूइंग अ मूवमेंट, द मूवमेंट इज वेरी फ्री. लेकिन जैसे ही आपका पोस्चर आगे चला जाता है, जैसे ये रेड डायग्राम में उन्होंने दिखाया है, ये स्पेस कम हो जाती है. अब जब आप मूवमेंट करेंगे तो वो बार बार उस बोन को हिट करेगा और उसके थ्रू पास होने वाले जो मसल्स हैं वो इरिटेट हो जाएंगे. सो इन अ लॉन्ग रन दे कैन गिव यू टेंडनाइटिस. इट मे आल्सो लैंड अप इनटू फ्रोजन शोल्डर, राइट? सो दैट इज द रीजन पोस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Other cumulative trauma disorders that are seen because of the faulty postures at work, first one is the carpal tunnel syndrome. तो जो लोग constantly अपने wrist पे pressure देके काम करते हैं, like IT professionals, cashiers, musicians,
बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर जो मीडियन नर्व होती है, जो आपके रिस्ट से पास होती है, वो दब जाती है, एंड दैट स्टार्ट्स गिविंग यू पेन एंड टिंगलिंग इन योर हैंड. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कार्पल टनल सिंड्रोम. देन द ट्रिगर फिंगर. ना जब मैं अपना फिस्ट बना रही हूँ एंड स्मूथ ओपन कर रही हूँ, द मूवमेंट इज वेरी स्मूथ. लेकिन ट्रिगर फिंगर में आपका जो फिंगर है वो स्नैप करके ओपन होगा. द मूवमेंट इज नॉट स्मूथ. दिस इज जनरली सीन इन दोज पीपल हु डू टाइपिंग वर्क या फिर अपने हाथ में कॉन्स्टेंटली वजन पकड़ के काम करते हैं. Decovers, very common. Use of mobile phones, playing games on mobile phones, chatting, use of space bar while using the laptop. So because of the repeated movement at your thumb, आपका जो thumb का tendon है वो irritate हो जाता है, जिसकी वजह से आपको thumb में pain आता है और जो movements है वो painful हो जाते हैं और उसे हम decurvence कहते हैं. And the last is the cubital tunnel syndrome. तो ये जनरली उनमें देखा जाता है जो कॉन्स्टेंटली अपना एल्बो बेंड करके काम करते हैं, लाइक यू नो टेलीमार्केटर्स, रिसेप्शनिस्ट, जो कॉन्स्टेंटली अपना एल्बो बेंड रखते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी अल्नार नर्व है जो आपके एल्बो के अंदर से पास होती है वो दब जाती है एंड वो इरिटेट होती है, एंड देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू पेन एंड टिंगलिंग नमनेस इन द इनर हाफ ऑफ योर हैंड. So these are few of the cumulative disorders that we commonly get to see, but there are multiple. So till now we have understood that yes, posture is very important and we have to take care of it. But how we will do it? Now first let us see what are the negative effects of prolonged sitting and prolonged standing. Now जब भी आप 8 घंटे से ज्यादा बैठे हैं without any physical activity, it is prolonged sitting. Okay? उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, आपका वजन बढ़ने लगता है, देन यू लैंड अप इनटू डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, and then back pain, neck pain, everything comes as a package. Then what is prolonged standing? Now according to the Dutch ergonomic guideline, आप ग्रीन जोन यानी सेफ जोन में है अगर आपका स्टैंडिंग 1 घंटे से कंटिन्यूअस स्टैंडिंग 1 घंटे से कम है, या तो फिर पूरा दिन में आप 4 घंटे से कम खड़े हैं. आप एम्बर जोन या ऑरेंज जोन में है अगर आपका कंटिन्यूअस स्टैंडिंग 1 घंटे से ज्यादा है, या फिर आपका ओवरऑल स्टैंडिंग इन अ डे 4 आवर्स से ज्यादा है. एंड रेड जोन में है अगर आपका कंटिन्यूअस स्टैंडिंग 1 घंटे से ज्यादा है एंड पूरे दिन में भी आप 4 घंटे से ज्यादा खड़े हैं, तो इन दैट केस द इंटरवेंशन इज नीडेड. Okay, so because of the prolonged standing आपको chronic venous insufficiency, that is varicose veins जैसी बीमारी हो सकती है, लो बैक पेन, नी पेन, फीट पेन, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं. तो हमने देखा अभी कि क्या क्या हो सकता है. Now let us see what we can do from our side. Now ergonomic considerations while sitting. Now ergonomics is very important. मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ और फिर जाके ऐसे बैठती हूँ काम पे for next 8 hours. It is not going to help. You have to balance it out. तो आप भले ही एक्सरसाइज करो, लेकिन अगर आप अर्गोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं दोगे तो उस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? तो अगर आप ये इमेज देखें तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल बैठे हुए हैं, इनको प्रॉपर बैक रेस्ट दिया हुआ है, देयर इज अ लंबर सपोर्ट, उनका चेयर का लेंथ ऑप्टिमम होना चाहिए. अगर वो बहुत शॉर्ट है तो वो उनका पैर हैंगिंग हो जाएगा, अगर वो बहुत आगे जाता है तो वो उनके नी में इम्पिंज करेगा. फुट रेस्ट होना बहुत जरूरी है, पैर हैंगिंग नहीं होना चाहिए. एल्बो एंगल 80 to 90 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए. आप रिस्ट के नीचे कोई सॉफ्ट कुशन यूज कर सकते हैं सो दैट देयर इज नो कांस्टेंट प्रेशर ऑन द रिस्ट. आपका जो व्यूइंग एंगल है वो 5 to 20 डिग्रीज होना चाहिए, राइट? एंड जो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन है वो 1 hand डिस्टेंस होना चाहिए. सो दिस इज द आइडियल सिटिंग पोस्चर. देन वर्क स्टेशन प्लेसमेंट. जो भी चीजें आपको बहुत जरूरी है और फ्रीक्वेंटली लगेंगे उसे आप 25 सेंटीमीटर के रेडियस पे रखें. जो चीजें आप ओकेशनली यूज करेंगे उसे आप 50 सेंटीमीटर के रेडियस में रखें सो दैट आपको बार बार आगे झुक के काम करने की जरूरत ना पड़े. Then ergonomic consideration while standing. So more or less the viewing angle, the screen distance and everything is going to remain the same. आपका जो टेबल का हाइट है वो ऑब्वियसली आपके हाइट के हिसाब से होगा, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर हियर इज द फुट रेस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एक पैर फुट रेस्ट के ऊपर रखते हैं तो आपका जो लो बैक है वो रिलैक्स हो जाता है. तो यही चीज आप किचन में भी अगर खड़े हैं बहुत टाइम के लिए तो आपके पैर के नीचे एक स्टूल या पाटला रख सकते हैं एंड इंटरमिटेंटली कीप ऑन चेंजिंग योर लेग. देन ergonomic consideration while doing different types of tasks in standing. अगर आप प्रिसिशन काम कर रहे हैं लाइक राइटिंग है या डायमंड सॉर्टिंग है तो आपका जो ये टेबल का हाइट है
वो आपके एल्बो से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक आना चाहिए, सो दैट आपको ज्यादा झुक के काम करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप लाइट वर्क करते हैं, लाइक असेंबली लाइन है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप वर्क है, तो वो आपको 5 to 10 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो होना चाहिए, सो दैट आपका शोल्डर ऐसे रह के आप काम नहीं करें। और अगर आपको हैवी वर्क करना है जिसमें आपको फोर्स की जरूरत है, लाइक कटिंग समथिंग, then your table height should be below 20 to 40 centimeters below your elbow, so that आपको वो फोर्स मिल सके। तो हमने देखा कि what are ideal situations, but हमेशा हर चीज आइडियल नहीं होती है। Sometimes even the best of the chairs will not provide you with the support. So once you have understood the concept कि ठीक है ये होना चाहिए, तो हम क्या हमारी दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चेयर का हाइट बढ़ाना है तो आप इस तरह से एक पिलो डाल सकते हैं। अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है तो आप पिलो रख सकते हैं, या तो टॉवेल का रोल बना के रख सकते हैं। इफ यू डू नॉट हैव अ फुटरेस्ट देन यू कैन यूज अ स्टूल, एंड द सेम स्टूल यू कैन यूज इट व्हाइल स्टैंडिंग ऑल्सो। अगर आपको आपके लैपटॉप का हाइट बढ़ाना है तो बुक्स या फिर कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये सारे अल्टरनेटिव्स आप सोच सकते हैं। सो इट इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन योर वर्क प्लेस, so that आपका posture सही रहे और आपका efficiency better रहे। So now we have seen ergonomics is done. Now let us do some movements. So first I will like to teach you few stretches. Now in the first stretch, that is the trapezius stretch. It is the red color muscle that you can see in the center image. अगर मुझे मेरा लेफ्ट साइड का ट्रपेजियस स्ट्रेच करना है तो मैं मेरा राइट हैंड अपने लेफ्ट कान के ऊपर रखूंगी, एंड आई विल पुल माय नेक ऑन वन साइड, होल्ड द पोजीशन, मुझे यहाँ पर पूरा स्ट्रेच आएगा। I will hold the position for 15 seconds and I will repeat 4 times. In the next stretch, that is the levator scapulae stretch, that is the green color muscle in the central image. ये जो हाथ जो मैंने कान के ऊपर रखा था उसको मैं थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करूंगी, and I will now move obliquely downwards. I will be getting stretched behind my neck. Hold the position for 15 counts and 15 seconds and release. So this will again be for 4 repetitions. हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर कितना डैमेजिंग हो सकता है, तो उसे हम कैसे करेक्ट करेंगे। सो द एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड इज द चिन टॉस। आपके जो आंखें हैं, आई गेज, यू विल फिक्स टू अ पॉइंट एंड देन यू विल स्लोली पुश योर चिन बिहाइंड, होल्ड द पोजीशन फॉर 5 सेकंड्स एंड रिलीज। यू आर गोइंग टू रिपीट 10 टाइम्स। कोई भी एक्सरसाइज जो आपको दिखाए गए हैं, इफ इट इज गिविंग यू एनी पेन, डिस्कम्फर्ट, टिंगलिंग, नमनेस और इट इज एग्रीवेटिंग योर कंप्लेंट्स, आप उसको डिसकंटिन्यू करें, because these are all generalized exercises which are being given, but if your pain or discomfort is because of some other reason, it has to be evaluated before starting with any kind of an exercise. So अगर आप ये देखें तो next exercise, elevate your shoulder and slowly get it down. ये बाजू में there is one lady जिनके ऊपर उन्होंने पेंटिंग किया है, just to see or show how your muscles look when the movement is happening, right? Then slowly take your shoulders behind, hold the position for 5 counts. How your scapulas are coming closer. This is how your muscle looks when actually the movement is happening. So this was a painting done by some Danny Quick Art, which was posted on the Facebook, from which I have got. Yeah. Then other than these, you can also do hand stretches, like, you know, pushing your hands together, doing it in the opposite direction, then keeping your elbow straight, you can stretch your wrist. So this will help you for stretching your nerves. So it is very helpful in shoulder conditions and then decurvence, cuboidal carpal tunnel syndrome. ये सारी चीजों में भी वो आपको help कर सकता है. Other than these, you can consider doing side bendings, rotations, ankle movements, knee extensions और standing hip raises. So basically, जब आपको सही posture की हम बात करें, तो आपका muscular balance, that is your flexibility and strength, has to be proper. आपको थोड़ा बहुत exercises आपके routine में include करने हैं, plus आपका ergonomics. So all these 3 together are going to give you a right posture. Okay? Now ergonomic consideration while sleeping. तो अगर जब आपका बेड है वो firm होना चाहिए. अगर वो ज्यादा soft है तो आप नीचे sag करेंगे, और अगर वो बहुत हार्ड है तो आपके कर्व्स एक्सैजरेट हो जाएंगे. देन पिलोज शुड नाइदर बी टू हाई नॉर टू फ्लैट, मीनिंग जब जो पिलो है वो आपके नेक को प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए. अगर टू हाई है तो बहुत आगे आ जाएगा, और फ्लैट है तो बहुत पीछे चला जाएगा. एंड इफ यू लाइक टू स्लीप ऑन द साइड, ट्राई टेकिंग अ पिलो बिटवीन योर थाइज सो दैट आपका पेल्विस भी सपोर्टेड रहे.
So I hope you have enjoyed this session.